Hello everyone. Hope you are enjoying your time and having some good times at home. Now we are studying about the Code of Pharmaceutical Ethics. So welcome to the classroom of pharmaceutical jurisprudence, where we have studied the introduction and about the pharmacy education and legislation of pharmacy education in India. Now we have entered to the Code of Pharmaceutical Ethics, where we have studied the code related to the job, related to the trade. Now, today we are going to study the code related to the profession in terms of particular ethical term that can be used as pharmacist in relation to his profession. So, let's start today's topic and we'll see how it is and it can help in our profession. So what is profession? So if you have some education and you have expertise and you have done work under this education in practical field, then it becomes your profession. Like if a doctor having a degree of MBBS or BHMS or BMS, whatever he have, or MS, and he have practiced his doctorate, and he have or she have used to deliver the society at that needs, then it's his medical profession. So as we are having the degree of pharmacy, having B Pharm, M Pharm or diploma or any other pharmacy degree, MS in Pharm. So we are going to enter the practical field of this study process, where we are going to deal with the medicines, where we are going to deal with the terms that are related to the pharmacist. So now pharmacy is become our profession. So as we are in the profession, so there are some certain etiquettes to be followed, some ethics to be followed in our profession to build up our profession, to build up our personal interest, to build up our trade interest, or to build up our daily life or livelihood. So for this purpose, we have to follow some ethics in our profession that has been laid down by Pharmacy Council of India according to the Pharmacy Act 1948. So let's see what are those ethics that needs to be followed. So at first we are just going to recap something about code, that is Code of Pharmaceutical Ethics. According to the definition, it was the code of moral principle or moral principle generally developed in a current society. If you are working in a particular society, then there are some certain rules or regulation that needs to be followed for the society to the society, and those rules are the code of principle or the code. Now this is also known as science of morals, and it is divided into four parts, that is pharmacist in relation to his job, pharmacist in relation to his trade, pharmacist in relation to his profession, and pharmacist in relation to medical profession. So we have studied about job and trade. So today we are going to deal with the profession, that is our profession, pharmacy profession. So as a code of pharmaceutical ethics towards the profession, there are some ethics to be followed. These are: number 1, professional vigilance; number 2, law abiding citizen; number 3, relationship with professional organization; and number 4, that is decorum and propriety. So these 4 principles we need to follow in our profession. So we need to know one by one.
So what are professional vigilance? Vigilance means direct observation. So if you are doing some earning or maintaining one profession, so you should have vigilance towards the profession for its betterment, for its growth, and for your personal growth also. For this point of view, we need to follow some rules like, first of all, always be respectful to the society and profession. As you have known that the profession, that is the pharmacy profession, and the code of moral principle or the code that is limited to the society. So we have to, or you have to always be respectful towards the some rules of that particular society. If you are using some very particular area and there are some particular rules for the society members, so you need to follow them for your betterment and for your professional betterment. So always be respectful. अगर कोई भी रूल्स वहां पे लागू किया जाता है तो आपको उसे मानना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, मेक अदर्स टू डू नीडफुल लॉज एंड रेगुलेशन. ऐसे नहीं कि आप ही हो, ये एज ए सोसाइटी के सिटीजन आपका फर्ज बनता है कि आपके आसपास जो भी लोग हैं, चाहे वो हो सकता है कि आपके फेलो वर्कर्स हो सकता है कि आपके कोलीग्स हो सकता है कि आपके सीनियर्स हो, जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी सिखाइए कि अगर आपको सोसाइटी में इस तरह से रहना है तो आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना चाहिए. और वो रूल्स एंड रेगुलेशन के लिए जो भी हेल्प आपसे बन सकता है वो हेल्प आप उनसे कीजिए. तो ऐसे एनवायरमेंट का जनरेशन होता है, एक फ्रेंडली वर्किंग एनवायरमेंट जनरेट होता है, दैट इज गुड फॉर योर प्रोफेशन. सो always be respectful to the society and profession, and always be respectful to the law, and make other do needful that has been beneficial for law and regulation. Law and regulation is imposed by some act and rules, but act and rules are only useful when you have some morals or you followed some ethics in your professional life. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि एक्सटेंड हेल्प एंड कोऑपरेशन टू फेलो मेंबर्स इन एनी नीड्स. सो आपके साथ साथ जितने भी सारे मेंबर आपके साथ काम कर रहे हैं, चाहे आपके साथ हो या आपके नीचे हो, जो उस टाइम पे अगर एथिक्स के लिए कोई भी चीजें जरूरी होता है या कोई भी पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है जो उनको ना आता हो, तो आपको हमेशा हेल्पफुल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप जानते हो तो आप उसे अपने तक ही रखो. अब उस नॉलेज को जितना डिस्ट्रीब्यूट करोगे आपका वो नॉलेज उतना बढ़ेगा. तो आपका ये फर्ज बनता है कि जो भी आपके साथ जुड़े हुए हैं तो उनके आप हेल्प कीजिए, तो ये हेल्प करते करते एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट तैयार हो. इन लॉ अबाइडिंग सिटीजन हमें कुछ पॉइंट्स का भी ध्यान रखना होता है. जैसे सबसे पहले हम एथिक्स तो फॉलो करेंगे, तो हमें जानना पड़ेगा कि लॉ क्या होता है. तो इस लॉ अगर कुछ आता है फार्मेसी रेगुलेशन में, फार्मेसी एजुकेशन में, या नॉर्मल आपके फार्मेसी प्रोफेशन में, तो आपको वो लॉ को जान के आपको रिस्पेक्टफुल होना पड़ेगा. यू हैव टू बी इन द लिमिट ऑफ दिस लॉ. हमेशा आप आइन के दायरे में रहोगे, आइन के बाहर जाके कुछ काम नहीं करोगे. तो आप कैसे ऐसे रह सकते हो? when you have the fair knowledge of laws of the land and food, pharmacy, health and sanitation. ये कुछ चीजों के बारे में बताया गया है कि आपको अगर नॉलेज है, किसकी नॉलेज? लॉ के नॉलेज. लॉ रिगार्डिंग टू द लैंड. आप जिस एरिया में काम कर रहे हो, आपके जितने भी एरिया के शॉप है या जो भी आपके फार्मेसी डिस्ट्रीब्यूशन सर्विस है, तो आपको इस एरिया के बारे में जान लेना चाहिए. इसके साथ साथ अगर आप फार्मेसी हो तो आप
कुछ फूड के बारे में भी, जैसे FSSAI जो भी रेगुलेशंस देता है उसके बारे में जानना चाहिए, आपके फार्मेसी के नॉलेज होना चाहिए। इसके साथ साथ हेल्थ और सैनिटेशन, इन चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना चाहिए। आप ध्यान कब रख पाओगे? जब आपको प्रॉपर लॉ पता होगी कि इसके बारे में क्या लॉ दिया गया है और इसको अगर लॉफुली मेंटेन करना है तो हमें क्या क्या करना होगा। ओके, सो हमें लॉ के बारे में बताना जानना जरूरी है और हम ये इंश्योर करें कि हम हमेशा उस लॉ को फॉलो करते रहे। उसके बाद लास्ट पॉइंट में देखा जाता है कि हिज लाइफ कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स। आप अगर फार्मेसी प्रोफेशन में हो, आप अगर चूज किए कि आपका प्रोफेशन फार्मेसी हो, दैट इज नॉट इम्पोज्ड ऑन यू। आपके ऊपर ये जबरदस्ती नहीं है, ये आपके मर्जी है कि आप फार्मेसी प्रोफेशन में आए हो, तो आपके लाइफ उस प्रोफेशन के अंदर ही होना चाहिए। आपके लाइफ अलग अलग डिवीजन में डिवाइडेड नहीं होना चाहिए कि आप सोचते कुछ और हो और करते कुछ और हो। ठीक है, तो अगर आप अपने लाइफ के अंदर कंप्लीटली इस एजुकेशन सिस्टम या नॉर्मल इस फार्मेसी प्रोफेशन को एब्जॉर्ब कर सकते हो, तो आप कंप्लीटली तरीके से फार्मेसी की तरफ या फार्मेसी के प्रति एक आपका रिस्पेक्ट आएगा और वही रिस्पेक्ट आपके वर्क में भी दिखेगा। तब आप नॉर्मल एथिक्स फॉलो करते हुए देखोगे। देयर शुड नॉट बी एनी पर्सनल बिटवीन योर प्रोफेशन एंड योर पर्सनलिज्म। आप प्रोफेशन के ऊपर ध्यान रखते हुए किसी भी पर्टिकुलर पर्सन की तरफ अपने प्रोफेशनल इन्फ्लुएंस नहीं शो करोगे। ऐसा नहीं है कि सपोज कोई भी कस्टमर या कंज्यूमर आता है जो आपके प्रोफेशनल में तो आता है लेकिन पर्सनली बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन आप दूसरे कंज्यूमर को अवॉइड करके अब अपने पर्सनल कनेक्टेड कंज्यूमर को ज्यादा टाइम या ज्यादा रिस्पेक्ट या ज्यादा जो भी वो मांगता है वैसा आप रिस्पेक्ट या बिहेवियर नहीं कर सकते। दैट इज दैट योर लाइफ शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट्स। यू शुड नॉट particular be towards some other people or some other customer. You have to behave equally to the others. And next point, that is relationship with professional organization. तो यहाँ पे हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है, जैसे inculcate a corporate life in his own professional colleagues. In his मतलब ये फार्मेसी। तो आप अगर फार्मेसी प्रोफेशन में हो एज ए फार्मासिस्ट, तो आपके प्रोफेशनल कॉलीग्स जो है वो भी फार्मासिस्ट या फेलो वर्कर्स है, तो आपके साथ या उनके साथ आपका एक प्रोफेशनल कॉर्पोरेट लाइफ होना चाहिए, नॉट लाइक पर्सनल। तो इस लाइफ को डील करने के लिए अपने आप को भी उस प्रोफेशनल कॉर्पोरेट लाइफ में आपको ढालना चाहिए। वही बताया गया है, इनकलकुलेट a corporate life in his own professional colleagues. Next point, should join and advance the cause for all. आपको वो काम करना है जो आपके प्रोफेशन के एडवांसमेंट के लिए अच्छा हो, जो सबके लिए अच्छा हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ अपने बारे में ही सोचे। नेक्स्ट, that is improve scientific, moral and cultural well-being of fellow pharmacists. ये पॉइंट हम हमेशा भूल जाते हैं। जैसे आपके भलाई सोचना है, साथ ही साथ अगर आप कॉर्पोरेट लाइफ में हो तो आपके फेलो फार्मासिस्ट या आपके जो भी कोवर्कर्स है उसके साइंटिफिक, मोरल और कल्चरल बीइंग के ऊपर भी ध्यान देना है। पहले ही बताया गया, दैट इज एथिक्स इज ए कोड ऑफ मोरल प्रिंसिपल। तो अगर आप अपने फेलो फार्मासिस्ट या आपके कलीग्स के मोरल प्रिंसिपल के ऊपर ध्यान नहीं दोगे तो वो मोरल प्रिंसिपल
आपके वर्क में भी नहीं दिखेगा। तो इसीलिए हमेशा जरूरी है कि आप अपने जो भी कलीग्स या फेलो वर्कर्स है उनकी जो भी इमोशंस उसको समझे, उसके मोरल वैल्यूज को आप और भी ज्यादा वैल्यूज दें, और इसके साथ साथ अपना भी जो भी साइंटिफिक नॉलेज है उसे बढ़ाते रहे। अब ऐसा नहीं है कि जैसे सपोज आप फार्मासिस्ट बन चुके हो, आप एक एजुकेशन ले चुके हो, लेकिन किसी भी फील्ड में उसका एडवांसमेंट होता रहता है। तो उस एडवांसमेंट के नॉलेज आपको होना चाहिए। इसलिए आपको पीरियोडिकल्स, जर्नल्स या जो भी नए बुक्स, नया इंफॉर्मेशन, वो सारे चीजें लेनी चाहिए, वो सारे चीजें स्टडी करनी चाहिए। जैसे आप स्टडी करोगे तभी आपका साइंटिफिक नॉलेज बढ़ेगा, तभी आप सोसाइटी के साथ या नॉर्मल करंट टाइम्स के साथ अप टू डेट हो पाओगे। तो इसीलिए दिस इज important for your professional organization that you should increase your scientific knowledge. And last point, no way contrary to the code. आप किसी भी तरह से कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल एथिक्स को डिसोबे नहीं कर सकते हो। कॉन्ट्ररी मतलब आप कोई भी कंट्रोवर्सी या कंट्रोवर्जन नहीं रख सकते हो। अगर आपके कोड ऑफ कोड ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स या फार्मास्यूटिकल एथिक्स में कुछ कोड्स दिया गया है तो आपको उसे हमेशा फॉलो करना है, आपको उसे हमेशा कंट्रोवर्सी में से भी दूर रखना है। नेक्स्ट पॉइंट दैट इज डेकोरम एंड प्रोप्राइटी। प्रोप्राइटी क्या होता है कि ये आपके ऊपर है कि आप किस तरह से किसी भी रूल्स को फॉलो करते हो। दैट इज योर पर्सनल वैल्यू, प्रोप्राइटी। एंड व्हेन दिस पर्सनल वैल्यू रिफ्लेक्ट इन योर बिहेवियर, in your etiquettes, that is decorum, and you should always maintain a decorum towards your profession. हमेशा प्रोफेशन में एक डेकोरम मेंटेन करके रखना चाहिए। अगर आप डेकोरम मेंटेन करके रखोगे तो वो आपके प्रोफेशनल के लिए अलग होगा। जैसे आप पर्सनल लाइफ में अलग हो सकते हो, प्रोफेशनल लाइफ में अलग हो सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल लाइफ का जो भी डेकोरम वो प्रोफेशनल तरीके से ही डील करना चाहिए। That is better for you, that is better for your fellow workers, that is better for your colleagues. So for this maintaining the decorum, you should act this way, that you should refrain from all such act and deeds which are not proper. तो कोई भी अगर प्रॉपर बिहेवियर नहीं होता है, कोई भी अगर प्रॉपर काम नहीं होता है तो आपको वहां से दूर रहना है। नेक्स्ट पॉइंट, should not likely to bring discredit to profession or to himself. आप अगर एक प्रोफेशन में हो तो इसे फॉलो करते वक्त कोई भी दूसरा पॉइंट आ जाता है that may be discredited to the profession, जो आपके प्रोफेशन के क्रेडिबिलिटी को लॉस करता है, तो ऐसे काम से आपको दूर रहना है। अपने आपके जो भी प्रोफेशन है उस प्रोफेशन को हमेशा क्रेडिट देना चाहिए। आप किसी भी तरह से उस प्रोफेशनल क्रेडिट के वैल्यू को लोअर नहीं करोगे। तो इस तरह से हम अपने जो भी प्रोफेशनल क्रेडिट एथिक्स है उस प्रोफेशनल एथिक्स को हम मेंटेन रख सकते हैं। तो इसके अंदर 4 पॉइंट अगर रिवाइज करें तो फर्स्ट पॉइंट था प्रोफेशनल विजिलेंस। आपको प्रोफेशन की तरफ क्या क्या नजर में रखना है और क्या क्या फॉलो करना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या था, सेकेंड पॉइंट, दैट इज लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो सबसे पहले आप एथिक्स तभी फॉलो कर पाओगे जब आप अपने आप में एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हो। तो आपको इस लॉ अबाइडिंग सिटीजन के लिए आपको जानना पड़ेगा कि उस एरिया में कौन सा लॉ चलता है, रिलेटेड टू द लैंड, रिलेटेड टू द हेल्थ, रिलेटेड टू द फार्मेसी, रिलेटेड टू द सैनिटेशन। इतने टाइप के लॉ आपको जानना चाहिए। थर्ड पॉइंट, दैट इज द रिलेशनशिप विथ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। आपके प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ आपका रिलेशनशिप क्या है वो मायने रखते हैं आपके प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। और फोर्थ पॉइंट इज
डेकोरम एंड प्रोप्राइटी। तो डेकोरम एंड प्रोप्राइटी में आपको एक पर्टिकुलर डेकोरम मेंटेन करके रखना है इन पर्सनल लाइफ एज वेल एज इन प्रोफेशनल लाइफ टू बिल्ड अप द बेटर प्रोफेशन इन योर फार्मेसी फील्ड। सो थैंक यू दोस्तों, होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ समझ में आया है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है या कोई भी आपको चीजें दोबारा से समझनी है तो प्लीज आप कमेंट कीजिए।